Dear students, I am Ashish Kumar from Golden Future Public School. Now this is the third lecture of class 9 and we are going to learn about diffusion and Brownian motion. Okay, let's read one by one line. This is Brownian movement, that is zigzag motion of small particles suspended in a liquid or a gas. Means that Brownian motion may be in a liquid or in a gas, but in solid there may be very less chance possibility of Brownian motion, because in solid the particles of matter are not intermixing. So the Brownian of motion is applied only liquid and in a gas. Now let's study next line. Our topic of this lecture is the particles of matter are constantly moving. In the previous class we have already known that the particles of matter are extremely small and the particles of matter attract each other. The particles of matter are constantly moving and the particles of matter have spaces between them. There are four characteristics of matter, and we know about by experiment that about the spaces between the particles of any matter, and we already know that how the small particles exist in any matter. Now we will know about the third property of matter, that is the particles of matter are constantly moving. In this lecture we will be learning about the particles of matter are constantly moving. How? The best evidence for the existence and movement of particles in liquid was given by Robert Brown in 1827. He suspended extremely small pollen grains in water and found that they were moving rapidly throughout water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water, and that is called Brownian movement or Brownian motion. Robert Brown in 1827 found that the pollen grains, dear students, we can't observe through microscope even about the molecules of H2O. So he did an experiment about it and he held some pollen grains and suspended it into the water. Then it was seen that the pollen grains was in movement in zigzag motion. What is the reason about it? Because the particles of water are constantly being hit. The particles of the pollen grains are being hit by the fast moving particles of water. वाटर के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं H2O, उसे भले ही माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन वो लगातार क्या कर रहे थे, पोलन ग्रेन्स को हीट कर रहे थे, इधर से उधर इधर से इधर. तो इससे पता चला कि वाटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन्स को हीट कर रहा है. पोलन ग्रेन्स जो इधर उधर जिगजैग मोशन में जा रहा है, इसका कारण यही है कि पोलन ग्रेन्स वाटर के पार्टिकल्स के द्वारा लगातार हीट किया जा रहा है. ये जस्ट लुक एट द फिगर, दिस इज द पोलन ग्रेन पार्टिकल्स एंड दैट इज इन द मोशन ऑफ zigzag motion because of the heat of water particles. The existence of Brownian motion gives two conclusions. तो Brownian motion दो conclusion दिए हमें. Matter is made up of tiny particles. क्योंकि अगर पार्टिकल्स टाइनी नहीं होता तो हम वाटर को देख लेते, नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके इफ़ेक्ट को हम देख रहे हैं ब्राउनियन मोशन में, इसलिए पार्टिकल्स
छोटे छोटे होते हैं, ये प्रूफ हुआ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जिग जैग मोशन हो रहा है। पोलन ग्रेन्स को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, उसे देख रहे हैं, वो एक जगह नहीं रह रहा है, बाहर का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ने दे रहा हूँ, तो भी क्या देख रहा हूँ कि पोलन ग्रेन्स क्या हो रहा है, वाटर में इधर से उधर जिग जैग मोशन में जेट के जैसा इधर उधर रैंडमली वो सस्पेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि वाटर उसको क्या कर रहा है, एक जगह स्थिर नहीं रहने दे रहा है, क्योंकि वो खुद स्थिर नहीं है। वाटर नहीं है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर के पार्टिकल्स नहीं है। तो इससे दो प्रूफ हुआ कि किसी भी मैटर का पार्टिकल्स जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट, द एक्सिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स टू कंक्लूजन दैट इज डिस्कस्ड। Sometimes when a beam of light enters a room, we can see tiny dust particles suspended in air which are moving rapidly in a very random way. Thus, air particles are constantly moving. ये हम लोग डेली हम लोग देख सकते हैं। हम लोग जब कभी वेंटिलेटर से देखते हैं जो रूम के साइड में ऊपर में रहता है, तो लाइट आ रहा होता है, तो हम लोग देखते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, कुछ डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंड कर रहा होता है। तो वो सस्पेंड जो कर रहा है वो एयर के पार्टिकल्स को दिखाता है। एयर के पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एयर पार्टिकल्स के कारण वो क्या होता है, वो भी मूव करने लग जाता है, ठीक ब्राउनियन मोशन के ही जैसा। जिग जैग मोशन में हम लोग देख सकते हैं, लाइट जब आता है किसी एक खिड़की से या वेंटिलेटर से, तो वो जिग जैग मोशन में मूव कर रहा होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि एयर का पार्टिकल्स मोशन में है और डस्ट को भी वो क्या कर रहा है, मूव करवा रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो क्या हो रहा है, जिग जैग मोशन हो रहा है। तो वो गैस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में बहुत कम होता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, चाहे वो गैस का पार्टिकल्स हो, लिक्विड का पार्टिकल्स हो, सॉलिड का पार्टिकल्स हो। इन कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड्स आर मोर, द स्पीड ऑफ लिक्विड्स इज मोर and the gas are the particles, the motion of particles of gas are high. Brownian motion increases with the increase of temperature, thus the movement or kinetic energy increases with the increasing of temperature. और ये हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अगर पानी में चीनी या नमक घोलते हैं तो हम यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी से चीनी घुल जाता है। तो ऐसा देखा गया, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है पार्टिकल्स का और बहुत तेज़ी से वो जिगजैग मोशन होता है, तेज़ी से डिफ्यूज़न हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने से तेज़ी से इंटरमिक्सिंग होता है, ऐसा देखा गया। When we burn an incense stick in one corner of a room, its fragrance spreads quickly in the whole room. It shows that the particles of matter, that means incense gases of stick and air, are constantly moving. The intermixing of particles of different types of matter on their own is called diffusion. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग अगरबत्ती का स्टिक जलाते हैं तो क्या देखते हैं, उसका धुआं एक कॉर्नर में जलाता हूँ और वो पूरे रूम में फैल जाता है, स्प्लिट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्टिक का जो फ्रेगरेंस है, जो उसका गैस जो है, वो एटमॉस्फेयर के एयर के पार्टिकल्स के द्वारा क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ एनी टू पार्टिकल्स ऑफ एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपस में जब मिल जाते हैं पार्टिकल्स, दो मैटर के या तीन मैटर भी हो सकते हैं, आपस में मिलते हैं तो डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन होने का रेट जो है बढ़ता है टेम्परेचर से, लेकिन नॉर्मल भी जब हम टेम्परेचर नहीं देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर जब नहीं देते हैं, तो देखते हैं अगरबत्ती का धुआं यहाँ से इस रूम के कोने से पूरे हॉल में या पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टिक का जो धुआं है और एयर का जो पार्टिकल्स है उसके साथ मिलकर के क्या होता है, फैलना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी मोशन में हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स, इतना पढ़ने के बाद इतना क्लियर हुआ कि कोई भी पार्टिकल्स, मैटर का, किसी भी मैटर का पार्टिकल्स मूवमेंट में रहता है और वो पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, जिसको पहले भी हम लोग एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो था उसको 10% ले लेकर के डालते जाते थे, वो फैलते जा रहा था, डिवाइड होते जा रहा था पार्टिकल्स उसका, और पर्पल कलर से भले ही हल्का लाइट कलर हो रहा था, लेकिन कलर वाटर को वो कर रहा था, कलरफुल कर दे रहा था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज टू टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैटर, एडेसिव एंड कोहेसिव।
Okay dear friends, if you have any doubt and query, then you can contact me on my WhatsApp number, that is 7004861830, and that is going on the screen. You can see and note down. Okay, thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.